Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone, so in this video I am going to start sum number 6.1. Here the function real number to real number and defined by fx equal to 2x plus 1. Now state whether the function is bijective or not. So first for the bijective you have to prove the function will be 1 function and also onto function. So first 1 proof करेंगे. Let a1 a2 belongs to R be such that so f a1 equal to f a2. Okay, so now here the function will be 2x plus 1, so it will be 2a1 plus 1 and 2a2 plus 1. So 1 cancel out, 2a1 equal to 2a2. Again 2 cancel out, so a1 equal to a2. That means f is 1 function. It's proved. Now for the next one. You have to prove this function is also a onto function. Okay. So for onto function, first consider any y belongs to real number, the codomain of f. Clear? So certainly y minus 1 by 2 equal to x. How? As you know, 2x plus 1 equal to y. So from that 2x equal to y minus 1 and then x equal to y minus 1 by 2. So we can write here y minus 1 by 2 equal to x belongs to R, the domain of f. Thus for all y belongs to R, codomain of f, there exists x equal to y minus 1 by 2 and x belongs to real number domain of f. Okay. So now such that fx equal to, अब x की जगह हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस 1 बाई 2. क्लियर? सो अगर देखिए यहाँ पर आपका कंडीशन क्या था, fx इक्वल टू 2x प्लस 1 था, या गिवन इक्वेशन था. अब x की जगह हम बिठाएंगे y माइनस 1 बाई 2. सो 2 इंटू वाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1. 2 कैंसिल आउट, y माइनस 1 प्लस 1 1 कैंसिल आउट, इट विल बी y. सो fx इक्वल टू y हो गया. दैट मीन्स f इज ऑन टू, क्योंकि fx इक्वल टू y अगर प्रूफ कर देंगे इसका मतलब y के लिए हर एक प्री इमेज आपके सेट में बिलोंग करता है. ओके, किसी भी अगर y उठा लेंगे उसका लिए एक प्री इमेज रहेगा, तो इसका मतलब f इज 1 2 हो गया. सो f इज 1 एंड ऑन टू, दैट मीन्स f इज बाइजेक्टिव. Now sum number 6.2 as same as this one, so I hope you can solve it. So now I am going to solve sum number 6.3. So here in sum number 6.3, f such that R to R, that means real number, fx equal to 1 plus x square. Okay. So now you have to prove that this one is bijective or not. So for any 1 and minus 1, you know that 1 and minus 1 both are belongs to real number. So for f1 it will be 1 plus 1 square equal to 2, and for f minus 1, 1 plus 1 minus 1 whole square, that will be 2. Okay. इसका मतलब f1 के लिए भी 2 आ रहा है, f minus 1 के लिए भी 2 आ रहा है. अब दोनों नंबर के लिए दोनों डिफरेंट इमेज होना जरूरी है, बट यहाँ पर दोनों सेम इमेज आ रहा है. दैट मीन्स एफ इज नॉट 1. अब बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों ही होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. अब कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं होगा इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा. सो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव. इसमें ऑन टू प्रूफ करने की और ज़रूरत नहीं है. सम नंबर 7, एफ सच दैट R to R and it's defined by fx equal to x to the power 4. So that f is neither 1 nor on 2. ओके, सो 1 प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर 1 और माइनस 1 जैसे मैंने लास्ट सामने किया था, सो 1 के लिए भी इसका वैल्यू 1 आएगा और माइनस 1 के भी 1 आएगा. इसका मतलब कोई डिफरेंट इमेजेस नहीं आ रहा है. सो एफ इज नॉट 1 हियर. ओके, सो मैंने यहाँ पर प्रूफ नहीं किया है. आई होप यू कैन डू इट. सो नाउ द नेक्स्ट वन, ऑन टू प्रूफ करना है. Since minus 1 belongs to R, the codomain, but there exists no such x belongs to R in domain such that fx equal to minus 1. क्योंकि देखिए यहाँ पर x to the power 4 है. अगर पावर इवन नंबर हो जाएगा इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ओके, x to the power 4 इट विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव. सो इसका मतलब माइनस 1 के लिए, माइनस 1 तो रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो माइनस 1 तो कोडोमेन में होगा. अब कोडोमेन में अगर माइनस 1 है, इसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है. इसका मतलब कोई भी x का वैल्यू जिसको आप होल टू द पावर 4 करेंगे वहाँ से माइनस 1 कभी भी नहीं आएगा. सो दैट्स वाई हियर माइनस 1 हैज़ नो प्री इमेज इन द डोमेन. ओके, सो दैट मीन्स f इज नॉट ऑन टू. नेक्स्ट, सम नंबर 8.
show that the function f such that R2R defined by fx equal to cos x is neither 1 1 nor onto. Okay, so for pi by 2 and 3 pi by 2 belongs to R. Okay, क्योंकि कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, so pi by 2 and 3 pi by 2 both are belongs to R. So for cos pi by 2 that equal to 0, you know that, and also cos 3 pi by 2 that equal to 0. For every odd multiple, the value of cos will be 0. You know that from the trigonometry. So here अब दोनों के वैल्यू के लिए देखिए पाई बाई 2 के लिए भी 0 आ रहा है, 3 पाई बाई 2 के लिए 0 आ रहा है. इसका मतलब f इज नॉट 1 1 फंक्शन. नाउ फॉर ऑन टू के लिए आपको मालूम है cos का बाउंडेशन क्या है, -1 से लेके 1 तक. सो -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1. सो रेंज ऑफ f हो गया आपका -1 से लेके 1 तक. सो इट्स अ सबसेट ऑफ R, क्योंकि देखिए रियल नंबर में तो बहुत सारा नंबर है, वहाँ पर सिर्फ -1 तो 1 नहीं है. -1 1 हो सकता है रियल में, बट इसके अलावा और भी ज़्यादा नंबर हो सकता है रियल नंबर में, और जो कि इन्फिनिटी नंबर है. ओके, सो दैट मीन्स -1 एंड 1 इज द सबसेट ऑफ R, नॉट इक्वल टू द R. ओके, अब यहाँ पर कोडोमेन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोडोमेन है R. सो रेंज ऑफ f नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ f. सो f इज नॉट ऑन टू. Next, sum number 9. F such that R2R means real number defined by fx equal to sin square x plus cos square x, neither 1 1 nor onto. Okay, so first since 0 and pi belongs to R, you know that. So for f0 sin square 0 plus cos square 0, that will be 0 plus 1, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है. So 0 plus 1 that equal to 1. फॉर पाई साइन स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है. सो 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट विल बी 1. इसका मतलब दोनों के लिए सेम प्री इमेज आ रहा है, सॉरी सेम इमेजेस आ रहा है, 1 and 1. सो दैट मीन्स f इज मेनी वन फंक्शन और नॉट 1 1 फंक्शन. क्लियर, f इज नॉट 1 1 फंक्शन, दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन. नेक्स्ट वन, सिंस fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड दैट इक्वल टू 1. So for all x belongs to R, it will be always 1. अब देखिए कोडोमेन में 2 भी एक नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. सो 2 के लिए यहाँ पर देखिए कोई प्री इमेज आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर x का कोई भी वैल्यू उठा लेंगे आप रियल नंबर से, उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा. So that means since 2 belongs to R codomain, but there exists no such x belongs to R in domain such that fx equal to 2 or fx equal to 3, कोई भी नंबर ले सकते हैं. So f is not onto function. Next, sum number 10. F such that I to I, that means integers, fx equal to x square plus x, it's neither 1 1 nor onto, प्रूफ करना है. ओके, सो यहाँ पर इंटीजर है, इसका कोडोमेन और डोमेन दोनों ही इंटीजर हैं. So 0 and -1 also belongs to an integer. For f0 it will be 0, and for f-1 it will be also 0. Thus f is not 1 1, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस होना ज़रूरी है हर एक फंक्शन के लिए, सॉरी हर एक प्री इमेज के लिए, बट यहाँ पर दोनों ही सेम आ रहा है. नाउ नेक्स्ट प्रूफ करना है ऑन टू है कि नहीं. सो -1 बिलोंग्स टू 1 कोडोमेन, सो fx इक्वल टू -1, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू -1. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इक्वल टू 0 हो गया. सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अगर यहाँ पर हम सीजर अचड़ी अप्लाई करेंगे, सो एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3/2, ओके, एंड विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू इन इंटीजर. अब जेड लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए अगर एक यहाँ पर एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब क्या, एक्स आप डोमेन से उठा रहे हैं. ओके, सो डोमेन का वैल्यू यहाँ पर इंटीजर ही होना चाहिए, बट यहाँ पर x इक्वल टू दिस वन, इसका मतलब a वाला कोई इंटीजर नहीं है. ओके, सो दैट मीन्स दिस वन जिसके लिए -1 आपका इमेजेस आ रहा है, वो वाला वैल्यू आपका डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो -1 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन. ओके, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट, नंबर 11. If the function f such that I to I fx equal to 2x plus 1 if x is odd and 2x minus 1 if x is even, then find f3. Okay, so for f3, 3 is an odd number, that means 2x plus 1. So 2 into 3 plus 1, it will be 7. Then f4, 2x minus 1, as 4 is an even number, so 2 into 4 minus 1, that equal to 7. Last, you have to find out x if fx equal to -9.
ओके, सो यहाँ पर आपको दो कंडीशन प्रूफ करना है, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है दो कंडीशन में, व्हेन x इज ऑड एंड व्हेन x इज इवन. So if x is even, then 2x minus 1 equal to minus 1, and from that x equal to minus 4. And when x equal to odd number, then it will be 2x plus 1 equal to minus 9, and from that x equal to minus 5. Okay. Now और एक चीज़ यहाँ पर पूछा है, is this function is 1 1 function. अब यहाँ पर देखिए f3 का भी इमेज 7 आ रहा है और f4 का भी इमेज 7 आ रहा है. इसका मतलब दोनों अलग अलग प्री इमेज के लिए एक ही इमेज आ रहा है. So that means no, it's not a 1 1 function. Now next, sum number 12. Now sum number 12 are little bit tough problem. So मैं पहले से ही बोलता हूँ इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर एक बार नहीं हो तो वीडियो पॉज करके उसको दोबारा आपको रीड करना होगा और फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना होगा. So यहाँ पर दिखा है f such that n to n, that means natural number, and defined by fn equal to n plus 1 if n is odd, n minus 1 if n is even. Clear? So now is both 1 1 and onto. आपको दिखाना है वाला फंक्शन 1 1 भी होगा एंड onto भी होगा. अब पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, पहले हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे 1 1 फंक्शन के लिए. सो n is odd, n is even. ओके, अब 1 1 के लिए आपको दोनों फंक्शन दोनों नंबर आपको उठाना होगा डोमेन से. सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n. अब कोई भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर n1 n2 भी लिख सकते हैं और n m भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो x1 x2 बिलोंग्स टू n द डोमेन, दैट मीन्स f x1 इक्वल टू f x2. अब यहाँ से इसको 1 1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको दिखाना होगा x1 इक्वल टू x2 दिखाएंगे. सो पहले यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन होगा, इसको आप 4 कंडीशन भी लिख सकते हैं. पहला कंडीशन क्या होगा, इफ x1 x2 आर ऑड. ओके, सो केस 1 x1 x2 आर ऑड. अगर दोनों ही ऑड हो गया सो एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देन ऑड के लिए n प्लस 1 होता है. सो x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 1 1 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2. इसका मतलब 1 1 प्रूफ हो गया अगर दोनों ही ऑड नंबर है. नेक्स्ट केस 2, if x1 x2 are even number, then f x1 equal to f x2. अब इवन के लिए -1 होगा, सो x1 -1 x2 -1, यहाँ से भी 1 1 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2 हो गया. इसका मतलब फॉर केस 1 एंड केस 2 f इज एन 1 1 फंक्शन. अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ फर्स्ट वन इज ऑड एंड सेकेंड वन इज इवन. इफ फर्स्ट वन इज इवन देन सेकेंड वन इज बी ऑड. ओके, सो इसका मतलब आप केस 3 और केस 4 दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं, बट 3 और 4 एक ही टाइप का है इसलिए मैंने एक ही केस यहाँ पर किया है. इफ x1 इज ऑड देन x2 इज इवन, एंड इफ x1 इज इवन देन x2 इज ऑड. सो फॉर फर्स्ट वन ऑड एंड इवन के लिए एफ x1 इक्वल टू एफ x2, सो इट विल बी x1 प्लस 1 एंड x2 माइनस 1. अब यहाँ पर देखिए x1 ऑड नंबर था. ओके, सो ऑड नंबर के साथ अगर आप 1 ऐड करेंगे सो इट विल बी चेंज इन टू इवन नंबर. सो दिस वन दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड x1 प्लस 1 इट विल बी अ इवन नंबर. यहाँ पर x2 क्या था, इवन नंबर था, x2 माइनस 1. अगर इवन नंबर से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी चेंज इन टू ऑड नंबर. सो राइट साइड आपका हो गया ऑड नंबर. अब इवन नंबर इक्वल टू ऑड नंबर ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है. सो विच इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स एफ x1 नॉट इक्वल टू एफ x2. इसका मतलब अगर फर्स्ट वाला नंबर ऑड हुआ या सेकेंड वाला नंबर इवन और फर्स्ट वाला इवन सेकेंड नंबर ऑड हुआ तो एक कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, एफ x1 नॉट इक्वल टू एफ x2. इसका मतलब अगर यहाँ पर केस 1 केस 2 केस 3 तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो हर एक कंडीशन को अगर आप कंबाइन करेंगे सो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा एफ इज 1 1 फंक्शन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है एफ इज ऑन टू. अब यहाँ पर भी दो कंडीशन होगा. फॉर द फर्स्ट वन इफ x1 बिलोंग्स टू n इज इवन नंबर एंड सेकेंड वन x1 इज द ऑड नंबर. सो इफ x1 इज द इवन नंबर देन x1 माइनस 1 इज ऑड. क्लियर? सो एफ x1 माइनस 1 इट विल बी, अब ऑड का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा, n प्लस 1 का फॉर्मूला होता है. सो x1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू x1. ये फॉर्मूला नहीं है, कंडीशन दिया हुआ था, ऑड के लिए n प्लस 1 होता है. सो एवरी इवन नंबर, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए एवरी इवन नंबर हैज़ अ प्री इमेज अंडर एफ.
मैंने यहाँ पर x1 इवन लिया था. नाउ द नेक्स्ट वन, x1 बिलोंग्स टू n इज ऑड. ओके, सो दैट मीन्स x1 प्लस 1 इज इवन नंबर. अब इवन के लिए कंडीशन क्या था, n माइनस n. सो x1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इक्वल टू अगेन x1. सो इसके अलावा इसका मतलब हो गया क्या, एवरी ऑड नंबर हैज़ अ प्री इमेज अंडर एफ. अब ऑन टू फंक्शन होने के लिए यही तो कंडीशन होना जरूरी है, जो हर एक नंबर का प्री इमेज होना चाहिए, चाहे वो ऑड हो या इवन हो. सो यहाँ पर देखिए एवरी इवन नंबर के लिए भी प्री इमेज है, एवरी ऑड नंबर के लिए प्री इमेज है. सो दैट मीन्स एफ इज ऑन टू फंक्शन. नाउ नेक्स्ट सम नंबर 13. फाइंड द नंबर ऑफ all 1 1 function from the set 1 2 3 4 to itself. अब itself बोला है, इसका मतलब if such that 1 2 3 4 to 1 2 3 4. okay, so now the number of 1 1 function. अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है. फॉर्मूला क्या होता है, npm when m less than equal to n. इसका मतलब n क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया और n इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन. सो यहाँ पर देखिए दोनों ही 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 4 एलिमेंट. दैट्स मीन इक्वल टू का कंडीशन प्रूफ हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. सो इसका मतलब हम यहाँ पर npm लिखेंगे. सो n का वैल्यू हो गया 4pm, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल. सो द वैल्यू विल बी 24. अब 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको निकालना आता है. ओके, सो नाउ फॉर सम नंबर 14 to 17. Listen very carefully. Sum number 14 to 17 are as same as exercise 2.3 17 to 20 from ICSE class 11. तो जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो में क्लिक करेंगे तो आपको 14 to 17 जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट सम नंबर 18. लेट y इक्वल टू fx. क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करना है आपको. Now sum number 18. What is the range of the function fx mod x minus 1 by x minus 1? Okay, so first let y equal to fx and that equal to this one. अब x यहाँ पर 0 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन जो 0 हो जाएगा, इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा. सो x नॉट इक्वल टू 1. सो नाउ मॉड, अब यहाँ पर देखिए मॉड x माइनस 1 है. अब मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड के अंदर से अगर कोई भी चीज़ आप उठा लेंगे तो वहाँ पर 2 कंडीशन होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. सो दैट मीन्स मॉड x माइनस 1 विल बी x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी माइनस x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 लेस देन 0. तो दोनों यहाँ पर केस होगा. अब पहला केस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, देन इट विल बी मॉड x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1. सो fx विल बी दिस वन, सॉरी x माइनस 1 and that equal to 1. नेक्स्ट के लिए if x minus 1 less than 0 then mod x minus equal to minus x minus 1. so fx हो गया आपका -1. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए 1 आ रहा है, सेकेंड के लिए -1 आ रहा है. सो रेंज हो गया आपका -1 and 1. नेक्स्ट सम नंबर 19. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 by 5 minus 3 sin x. सो फॉर डोमेन निकालने के लिए fx मस्ट बी अ रियल नंबर. सो दैट मीन्स 1 by 5 minus 3 sin x मस्ट बी अ रियल नंबर. अब ये पर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं हो सकता है. सो 5 minus 3 sin x नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. सो फ्रॉम दैट sin x नॉट इक्वल टू 5/3. अब 5/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है. ओके, अब साइन का आपका जो इंटरवल आपको मालूम है -1 से लेके +1 तक. इसका मतलब साइन का अगर x का कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे तो कोई भी वैल्यू के लिए उसका रेंज हमेशा -1 से लेके 1 तक ही रहेगा. क्लियर. सो यहाँ पर साइन का वैल्यू जो 5/3 जो 1 बाई नहीं है, इसका मतलब कोई भी नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. क्लियर. सो दैट मीन्स डोमेन ऑफ एफ विल बी रियल नंबर. मैंने यहाँ पर तो ज़्यादा कर दिया. अगर आपको रेंज निकालना है तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा, पर यहाँ पर तो रेंज निकालना नहीं है, सिर्फ डोमेन ही निकालना है. नेक्स्ट सम नंबर 20. फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx 1 by 2 minus cos x. ओके, सो फर्स्ट लेट y इक्वल टू fx एंड दैट इक्वल टू 1 by 2 minus cos x. नाउ वी नो दैट cos x का भी रेंज होता है -1 से लेके 1 तक. ओके, अब यहाँ पर माइनस लाना है, सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1. फिर क्या लाना है, यहाँ पर 2 लाना है, सो 2 ऐड कर दीजिए, 3 हो जाएगा 2 minus cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.
अब इसको अगर चेंज कर लेंगे सो 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/। अब इसको अगर 1/, में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी आपका 1/, में हो जाएगा, बट यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है वो साइन चेंज हो जाएगा। ओके 1/1 तो 1 हो गया, सो लेस देन इक्वल टू चेंज इनटू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1/3। सो अब घुमा के लिखेंगे 1/3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब जो रेंज हो गया यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है, सो इन क्लोज्ड इंटरवल 1/3 एंड 1। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 21। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट वन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन दिया हुआ है, एक साइन एक कॉस। अब दोनों को हम एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस वाला प्रॉब्लम हमने ट्रिकोनोमेट्री में सॉल्व किया था। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर बाहर में √2 कर दिया और अंदर 1/√2 एडजस्ट कर लिया। ओके सो 1/√2 का वैल्यू क्या होता है cos π/4 और sin π/4। मैंने √2 से ही मल्टीप्लाई किया क्योंकि cos और sin का जो वैल्यू होता है वो एक बार cos π/4 और sin π/4 दोनों का सेम वैल्यू होता है और होता है 1/√2, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/√2 एडजस्ट किया है। सो अब देखिए ये वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया, cos A sin B प्लस sin A cos B। इसका फॉर्मूला हो गया sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। क्लियर। सो √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4। अब साइन कोई भी यहाँ पर फंक्शन होगा साइन का फंक्शन का हमेशा रेंज होता है -1 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पर एक्स होगा या थीटा होगा या उसके साथ π/4 π/3 कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर √2 आना है, सो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -√2 लेस देन इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस π/4 लेस देन इक्वल टू √2। इसका मतलब ये वाला आपका फंक्शन हो गया। सो दैट मीन्स रेंज हो गया आपका -√2 से लेकर √2 और वो भी इन क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है। नाउ 21-2, दिस इज द लास्ट सम फॉर दिस वीडियो। सो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू व्यूअर। So here fx equal to 3 sin x plus 4 cos x. Okay. So first putting 3 equal to r cos alpha and 4 equal to r sin alpha. Just let this one. So now squaring both sides you will get r square sin square alpha plus r square cos square alpha. Square करने के बाद उसको add करेंगे हम. So it will be 4 square plus 3 square and that equal will be 25. अब यहाँ पर देखिए अगर r square आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin square alpha plus cos square alpha and that equal to 1. So r square equal to 25 and r equal to 5 हो गया। Now the next, if the equation 2 divided by 1 it will be tan alpha, क्योंकि sin alpha by cos alpha it will be tan alpha, r cancel out हो जाएगा, it will be 4/3। So alpha का वैल्यू हो गया tan inverse 4/3। So now fx equal to r cos alpha sin x, क्योंकि 3 का वैल्यू क्या था r cos alpha, so r cos alpha sin x and plus r sin alpha cos x। सो आर अगर कॉमन ले लेंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस अल्फा। ओके आर का वैल्यू क्या था 5, सो 5x प्लस अल्फा, सॉरी 5 साइन एक्स प्लस अल्फा। मैंने पहले ही बोला था साइन का रेंज क्या होता है -1 से लेकर 1 तक, तो इसका मतलब भी साइन एक्स प्लस अल्फा का भी रेंज होगा -1 से लेकर 1 तक। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, सो रेंज हो गया आपका -5 to 5।